Well, everybody, my name is Zunaira Sayyed, and I am into the education sector for more than 20 years for now. I started working early in 2003. I started my career as a school teacher, and later from teaching, I grew into administration and administrative domain. Most of my experience come from teaching and a little bit from the administrative tier as well. Okay, so with us we've got Bilal, Anila, Misasia, Binesh, Khalid, Jamil. At least you can say unmute your mic and say hello so that I actually need to connect with you people before I begin. Yes, Assalamu alaikum. I'm Kamarun Nisa and looking forward to you. अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिनिश हूँ और मुझे आपको सुनना है आज कुछ और नया सीखना है। oh my god. Thank you so much, Binesh. I think and I hope I come up to your expectation. Okay. इंशाल्लाह। Yes. We've got Eben, we've got Khalid, and we've got Maheen. Right. Is there anybody else, or should I begin right away? I think you should start. Okay. Yes. Right. Well, the topic I've chosen, I had a great difficulty when Miss Asia asked me to present on this forum. I had a lot of difficulty in choosing the topic because when you come up from a diverse, background, then it really becomes difficult to choose what to. And since I did not know who my audience are, whom I'm going to speak to, definitely I had to choose something that would apply to all of us, and it's kind of a life skill, an important one, a 21st century life skill. And I have chosen it not because I'm good at it, I've chosen it because I'm very bad at it. Okay? Alright, on a lighter note, आप लोग अपने mics please unmute कर दें. No need to mute your mic so that I can hear responses. Okay? Alright. Vulnerability. कुछ पता है इसके बारे में? Word सुना है? Vulnerability. Let's be vulnerable. Come on. छोड़ दें, अंग्रेजी में हम बात ही नहीं करते. Let's talk in Urdu. लेकिन अगर मैं बार-बार switch करूं, it is very difficult emotional state. Emotional state. Vulnerability is a very difficult emotion, Zunaira. ठीक है. And we are always afraid of being vulnerable. हमें बहुत डर लगता है कि हमारी कोई वीकनेस पता ना चल जाए. Hiding weaknesses और किसी का वीकनेस ओपन हो जाना, इसको कहते हैं कि vulnerable है. हम vulnerable हो गए. हाँ, अच्छा, ठीक है. Okay, anybody else? कोई और बताएगा? सिंपल, बहुत अच्छे वर्ड्स में बहुत सिंपल करके बताया मिस आसिया ने. Anybody else? Ma'am, being exposed हाँ, being exposed to your weaknesses, I think. हाँ, very nice. ताहिर अजीज, come on, बताइए. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Tahir, how are you? I'm good. I am Thank you fine. for asking. Thank you. I am Tahir Aziz from District Bakar. I am the Master Trainer in Mathematics from District Bakar Oh, great. and working as EST, Government Sector, Zabardast. author of Hidden Mathematics. Mashallah, you are an author as well. Yes. I'm speaking to great audience. Yeah. Okay. जी, ये असल में होता है कि कोई काम हम शुरू जी Vulnerability, what is it? क्या लगता है आपको? कोई काम हम शुरू करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमारे जी ताहिर साहब, आप बताइए. डर होता है, जो खौफ होता है, उसको हम वीकनेस में लेंगे कि क्या होगा, कैसे करने से लोग क्या कहेंगे. ये चीज इसी में आ जाएगी. ठीक कह रहे हैं. Very right. Anybody else would like to? I would appreciate कि आप सब लोग मुझे एटलीस्ट, जो मैं पूछूं, मुझे जितने लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जिनका माइक ठीक चल रहा है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड मी, जरूर बताइए मुझे. जी मिस जुनैरा जी.
वल्नरेबल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे हम पीयर प्रेशर लेते हैं, सोसाइटी का प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, हर काम करने से पहले दूसरों का सोचते हैं, पता नहीं कोई क्या कहेगा, आज मैंने ये ड्रेस पहना, पता नहीं क्या सोचेंगे। जिंदगी का सबसे हर बड़ा वक्त हमारे जहनों पे सवार होता है। यस यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस। चलें आगे चलते हैं, मैं साथ साथ सबको इन्वॉल्व करूंगी सो दैट वी फिनिश ऑन टाइम। अच्छा, इज वल्नरेबिलिटी अ वीकनेस और अ स्ट्रेंथ? क्या लगता है आपको, आपके नजदीक, फॉर यू, आपका परसेप्शन क्या है? मिस आसिया, आपका परसेप्शन क्या है? मेरा परसेप्शन है कि वल्नरेबल होना एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके बाद आप ग्रो करते हैं। अगर आप वल्नरेबल होते ही नहीं तो आपको क्या पता कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। इफ यू ऑलवेज प्ले सेफ, स्टे सेफ, तो आपको पता ही नहीं कि चैलेंज क्या है। आई थिंक वल्नरेबल होना, बीइंग वल्नरेबल इज अ स्ट्रेंथ अगर आप उस पर काम करें। As far as I know you, you are vulnerable, or one of the reasons of your success and of your growth is your emotional intelligence. And emotional intelligence को आज हम relate करेंगे vulnerability के साथ, right? I'll try to make it easier for you. Everyday life skill में हम इसे convert करेंगे। और कोई comment करेगा, अपना perception बताएगा, आप इसको weakness समझते हो, you take it as a strength? बिलाल? Ma'am, I think being vulnerable to something, it means that you're worried about it, and when we use vulnerability, it means that you're afraid of it. आपकी perception में, is it a weakness, a human area of concern, or is it a strength? Ma'am, fear. I think it's a fear. You take it as a fear. Yeah, it might be a strength, as Miss Asia said, and it might be a weakness, but it's a fear, so I do not know about it. So ठीक है, very nice. और कोई comment करेगा इसके बारे में? Yes, please, Imran. Hello, Imran. Hello. Do you hear me, ma'am? Well, ma'am, I consider कि ये जो है इसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ में आएगा। Okay, you take it as a strength. अच्छा, मैं जरा higher order thinking skills भी involve कर लूँ. Why do you take it as a, जैसे आसिया ने जब जवाब दिया ना, तो आसिया ने she related it, she gave an example. आपके नजदीक क्यों ऐसा है? Why do you take it as a strength? How would you relate it? Well, it's for self awareness. मैं इसको थोड़ा सा इसको करूँगा for self awareness. Very good. Self awareness, जबरदस्त self awareness. Okay, let's move forward. कोई और तो बोलना चाहेगा इस पे? Okay, so no more responses. I think सभी साहब बोलना चाहिए, सुनैना? I think सभी साहब अच्छा, मैं I need to see the chat also. मैं इसको जरा इग्नोर कर गई थी चैट को। माहीन, इमोशंस, बीनिश कहती हैं। अच्छा, कहने से योर नेम्स, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो मुझे बता दीजिएगा। Can't control my reactions on some disturbing thing. Good. Vulnerability is the emotion of being hurt easily. Okay, fine. और सभी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास सभी का इंडिकेशन नहीं आया है यहाँ पे। सभी साहब आ जाइए आप। जी बताइए, कहाँ है सभी साहब? सभी साहब के पास बड़ा एक अच्छा उनका पर्सपेक्टिव होता है, हमारे बड़े अच्छे से कम्युनिटी मेंबर हैं। सभी साहब? Ma'am, I think he's having technical issue. Just give me a moment. Yeah. Okay. Sabi sir, please refresh your screen. He can listen to us, but he's unable to speak. You can take comment from someone else. In meanwhile, I'm going to call. vulnerability का तलत, yes तलत, please. मुझे लगता है कि आपको वल्नरेबल होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा देन यू विल मैनेज जो भी आपके इमोशंस हैं, उससे मतलब जो भी आप मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी समथिंग ऐसा भी हो सकता है कि
सामने वाले आपको हर्ट करें या कुछ ऐसा, लेकिन उसके लिए आपको फिर कन्फर्ट लेवल जो है अपना वो बहुत हाई करना पड़ेगा कि आप हर तरह के लोगों को कन्फर्ट करें और इस तरीके से ना। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लेट्स मूव। ये स्लाइड को थोड़ा थोड़ा टच करते जाएंगे, लेकिन फिर मैं इसको कोशिश करूंगी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करने में। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना यूनिक सेट ऑफ स्किल्स के साथ पैदा किया है। इट्स ओनली कि किस किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है, किस किस्म का एक्सपोजर मिलता है, एंड हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। थिंकिंग कि कोई आएगा और आपके लिए चीजें आसान करेगा, अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू यू, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है in my early professional career, I was very proud to say at times कि मैंने किसी जॉब को हंट नहीं किया, I've been hunted, और मेरे लिए बड़ा प्राइड था। So I used to live in a bubble। आपको वो बबल का पता ना, it's very easy to pop up with a mere reactionary response of somebody। कभी कोई criticize कर दे तब भी वो बबल burst हो जाता है। और ये जो ईगो का बबल होता है, एक सेल्फ एस्टीम होती है। सेल्फ एस्टीम इज अ पॉजिटिव ट्रेट, आई टेक इट एज अ पॉजिटिव। लेकिन जो ईगो है ना, ईगो इज समथिंग के इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है आपका, तो ये आपको डैमेज करना शुरू हो जाता है। मैंने एक बड़ा प्यारा इमेज भी आप लोगों के लिए रखा है इसमें। अर्ली इन माय प्रोफेशनल करियर में उसकी बात कर रही थी कि मुझे आगे से आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम ग्रोथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज ही लेते हैं, वो मुझे मिलती गई। आई हैड बीन रेफर्ड बाय पीपल एंड फ्रॉम अ मियर एन ऑर्डिनरी टीचर। इफ यू माइंड, मैं जरा इसको अपने चार्जिंग पे साथ लगा लूं, मुझे लग रहा है बैटरी मेरी इट्स गोइंग टू डाई। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, डोंट माइंड, आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग इन द मीन टाइम। सो ऑल माई लाइफ आई हैड बीन अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्क बहुत था मेरा, और उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ रिसर्च करने की आदत। सो एक मेयर पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ आई रिसर्च्ड अ लॉट, आई स्टडीड अ लॉट, आई वर्कड हार्ड, और बहुत सारी डोमेन्स थी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा, लेट्स नॉट ऐड इट टू देयर, इरेलेवेंट भी हो जाएगा और टाइम बहुत थोड़ा है। सो देयर केम अ टाइम व्हेन आई रीच्ड माय सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ मिस देखेंगे मिस्ट्री वाली मैडम बैठी हुई है, ये बड़ा अच्छा बताएंगी आपको। लेकिन आपका अपना भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, व्हेन यू रीच दैट एंड यू फील कि अब आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, व्हाट्स आई एम अप टू, अब क्या करूं। तो वो वाला पॉइंट या आपको एक डायरेक्शन दे देता है या आपको एक एब्सर्डिज्म दे देता है। आप एक वॉइड में चले जाते हैं, खालीपन जिसे कहते हैं। फिर आप उसे या कोई निकालता है पकड़ के, या फिर आप उसी के अंदर रहते हैं। So there came a point in 2019 when I left Beacon House at the peak of my career. I decided to say goodbye to a very जी। कोई निकालता है उसमें से या खुद निकलता है इंसान? मुझे तो निकाला क्या था, एंड इसी पे हमने बात करी है कि आप निकाले जाने का वेट मत शामिल कर लें, because sometimes it gets too late। ठीक है, अगर वो निकालने वाला नहीं आता तो फिर आप वहीं पे रह जाते हैं। I was lucky enough that I was pulled out of it, right? तो निकलना हमने खुद है, हमने वेट नहीं करना किसी का, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि एम्पैथी बड़े नसीबों वालों को मिलती है, कोई आपको रिकॉग्नाइज कर ले और कोई वैल्यू कर ले आपको। तो बहरहाल 3 years I spent in that depressive mode, जिसमें मैंने दुनिया का हर काम। सॉरी टू इंटरप्ट। कोई वैल्यू कर ले या आप अपने आप को खुद कर ले। किसी की वैल्यू का इंतजार करना चाहिए कि खुद को वैल्यू करना चाहिए। Exactly. This is what you are driving me to the essence and the conclusion of what I have to speak today. आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रही हैं, बहुत जल्दी मुझे पहुंचने दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रही हैं, और कोई नहीं, yes of course it's you who have to pull yourself out of it। किसी कोई का इंतजार ना करें।
सो छोटी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए मैं बता देती हूँ कि आई बिकेम वल्नरेबल। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं वल्नरेबल नहीं थी। आई थॉट माई सेल्फ आई एम इनविंसिबल, आई एम परफेक्ट, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, दुनिया में सब ये नहीं गलत नहीं है लेकिन मैं ठीक हूँ। I didn't say कि सब गलत है, but I felt कि मैं ठीक हूँ। But then I sat, I realized, I contemplated. बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के बाद I came to know, I understood, I started seeing my own weaknesses. मुझे समझ आई मैंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, only because I started connecting with myself and with my emotions. ये वो वाली बातें नहीं मैं कर रही, मैं टेड टॉक नहीं कर रही आप लोगों के साथ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ अपनी स्टोरी बता रही हूँ, और उस जिस द टॉपिक व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक एंड स्टिल आई एम ऑन माय वे। मैं समझती हूँ मैं 5% पे भी नहीं हूँ वल्नरेबल होने में, हमें बहुत ज्यादा आई हैव वे टू गो फॉर दैट। लेकिन अगर आई कुड एड वैल्यू टू योर्स, अगर मैं आप लोगों का रास्ता आसान कर दूं जस्ट बिकॉज रिलेटिंग टू माई ओन वर्क लाइफ एक्सपीरियंस और इमोशनल की, अभी देखिए मैंने कहा मैं वल्नरेबल नहीं हूँ, आई कैन नॉट रिफर टू द एग्जाम्पल्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ एंड माई इमोशनल वेल बीइंग। मैं अभी तक आई कैन नॉट, अभी नहीं जा सकती। हाँ, प्रोफेशनल पे मैं बात कर सकती हूँ। सो वल्नरेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? वल्नरेबल हुई, उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स वंस अगेन। मैंने जिस जगह पर काम किया, जिस सिटी में काम किया, वो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर टॉप ऑर्गेनाइजेशन थी। आई वाज एट अ टॉप पोजीशन, मिस आसिया नोज मी वेरी वेल। उसके बाद मुझे 3 साल किसी ने जॉब नहीं दी वहां पे, थिंकिंग दैट ये तो वहां से आई है, ये नीचे नहीं आएंगी। आई वाज रेडी बट नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट मी, और उसको आई टुक इट एज अ फ्लॉ कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्यों मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते मेरे से, मतलब एज कंपेयर टू अगर क्वालिफिकेशन में देखूं, एक्सपीरियंस में देखूं, तो जो लोग मुझे लगता था वो एक्सेल कर गए और वो ग्रो कर गए। Then in 2022, I again took the decision. I shifted to another city with the thought कि यहाँ मेरे पास चांस होगा, opportunities होंगी, and the first opportunity I came across, I grabbed that, and trust me, I'm very happy since then. बड़े मजे की लाइफ गुजर रही है। अब चलें बात करते हैं वल्नरेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये स्लाइड पे मैंने जो डाला है ना, इसको बहुत शॉर्ट करके आई ट्राइड इट कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज अ पर्सन, way to find deep satisfaction in your relationships, opening up and relinquishing your fears. आप दलाल की बात, आप इनको relinquish करते हैं, you let go fears of rejection, helps build trust and honesty with others, fosters empathy, builds stronger bonds. आपने कभी फील किया कि आप किन लोगों के साथ कनेक्ट, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं? हाउ कैन यू टॉक फॉर आवर्स टू समवन लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन किसी स्ट्रेंजर से आप 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते? क्या रीजन है? बेस्टीज के साथ हम वी कैन गो फॉरएवर, वी फील अनसेफ। हाँ, मैं वन बाय वन सबकी तरफ आती हूँ। तलत बताएं, अनसेफ क्यों फील करते हैं? बिकॉज के हम उसके बारे में नहीं जानते, वो कि जो भी सामने वाला बंदा है उसकी क्या परसेप्शन है, या हमारी कोई परसेप्शन है किसके बारे में, ठीक है, हमारी जो लाइक थिंकिंग है वो मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल, या हम उसके माइंडसेट को नहीं जानते हैं ना, कि वो किस एनवायरनमेंट से वो बंदा आया है, किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है। तो हमें थोड़ा सा उससे थ्रेटनिंग रहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि भाई सामने वाला जो है वो किसी मतलब किस तरह के लाइक फैमिली, उसकी फैमिली किस टाइप की थी, या उसकी एजुकेशन किस टाइप की थी, किस तरह के एनवायरनमेंट में के लोगों में वो रहा है, और ये सारी चीजें। और अल्टीमेटली हमें परेशानी क्या है? हमें क्या उसके बैकग्राउंड की परेशानी है, या हमें इस परसेप्शन की परेशानी है कि पता नहीं ये मुझे मेरी इस बात को क्या समझेगा और मेरे बारे में क्या आइडिया, क्या परसेप्शन बना लेगा? ऐसे ही? हाँ ऐसे ही है, हमें अपनी होती है ना अपने बारे में परेशानी। हाँ, तो ये हमारी किसी पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव में ले सकता है ना। We like to see ourselves from the lens of others.
हम कभी भी अपनी जात को अपने लेंस से नहीं देखते. We love to see ourselves from the lens of others. We love to seek appreciations. We love to seek acknowledgement. कैमरा वेबकैम पे आने से पहले मैंने 10 दफा यूं करके देखा, फिर हर एंगल से मुंह बड़ा ही लग रहा था, मोटा ही लग रहा था. मैंने थॉट चलो भाई बस कर दो, नहीं हो सकता. फिल्टर्स वाले कैमरा यूज कर करके आज वेबकैम वाले कैमरे पे बिलाल मुझे लेने आए हैं, तो मैं अपना मुंह देख के खुद डर गई हूँ. बट देन आई सेड वल्नरेबिलिटी पे बोलना है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस से बोलना है, लेट इट बी, कोई बात नहीं. लेकिन ये कसरे नफ्सी में बोला जा रहा है, ये वल्नरेबिलिटी में नहीं बोला जा रहा. आप इस तरह भी बहुत अच्छी लग रही है. बस ये सुनना था एक्चुअली. Yes, ma'am, you have a very good personality. सभी साहब आ गए. देखो ये तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका है एनकरेजमेंट लेने का. चलित के बाद कोई और बोलना चाह रहा था, मैंने वो जल्दी से एक विंडो पॉपअप किया. सभी साहब तभी साहब आ टेक्स्ट कर जाए. लेते हैं. प्लीज डोंट माइंड, मैं ना मिस और साहब बताना भूल जाती हूँ, बिकॉज मेरा जरा वो स्पोकन इंग्लिश और आईएलटीएस का एक्सपीरियंस कर करके ना वी कनेक्ट लाइक इंग्लिश पीपल, वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं बड़ी जल्दी. तो उस वजह से आई ऑल्सो फील के फर्स्ट नेम से बुलाएं तो बड़ी जल्दी कनेक्शन जो है ना वो डेवलप होता है. अब मैं बोल रही थी, अस्सलाम वालेकुम. बात करना चाहती यस नम्रा, वालेकुम अस्सलाम. जी नम्रा, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम हर तरह की उनके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, चाहे वो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों से रिलेटेड हो. मगर जो स्ट्रेंजर्स हैं उन पे हम ट्रस्ट नहीं करते. जितना वो सवाल करते हैं या जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उनसे उतनी ही बात करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए बात करते हैं. इसको अगर मैं एसेंस इसका निकालूं, बिकॉज अगेन हमें वो जो फियर ऑफ सेल्फ परसेप्शन है कि हमारा इमेज कहीं शैटर ना हो जाए, हमारा इमेज रिटार्ड ना हो जाए, वो चीज डिस्टर्ब ना हो जाए. बस मेरे नजदीक तो ये है. अगर आप इफ यू कुड ऐड, किसी के पास नया पॉइंट है तो रेज हैंड कर दे ताकि हम सब उसे कोई टेक अवे ले लें. जी नबीला, आई थिंक सम प्रॉब्लम विद योर माइक. Yes, ma'am, I'm checking it. Binish, I fell in love with you. Thank you so much. She said you are beautiful, mashallah. And Maheen says afraid of being judged. Yes, बहुत ज्यादा afraid of being judged. और खुद हम इतने जजमेंटल हैं कि पूछें कुछ ना. मैं बहुत जजमेंटल हूँ, मैं कहती हूँ मैं जजमेंटल, और जब मुझे कॉन्शियस लेवल पर आता है व्हेन आई फील कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ, फिर मैं अपने आप को शन भी करती हूँ कि ओह यू आर बीइंग जजमेंटल अगेन. एंड ट्रस्ट मी एवरीबॉडी, माय हस्बैंड हैज प्लेड. ये जो जजमेंटल होना है ना, ये जो जजमेंटल होना है, ये जो हम खुद जजमेंटल होते हैं, जो बहुत ज्यादा हम खुद जजमेंटल होते हैं, उसकी वजह से हमें दूसरों की जजमेंट का डर लगता है. बेसिकली ये हमारा अपना एक डर होता है जज करने का. जब हम खुद जज करते हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमारी बात को दूसरा ऐसे ना ले ले. ये हमें क्लीन करने की जरूरत होती है अपनी विंडो. You added to my critical thinking for this. Thank you so much. Thank you. जी, मैं किसी को मिस तो नहीं कर रही यहाँ पे. I think I've been inclusive. Okay, चले जल्दी बात करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कब आई इमोशनल इंटेलिजेंस? इससे पहले तो IQ होती थी, ये कब आई है इमोशनल इंटेलिजेंस? कोई बताएगा? मैं बता देती हूँ. 1995 में ये टर्म कॉइन हुई थी. 1995, लेट 90s, मिड 90s आप कह रहे हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस हैज जस्ट सरफेस्ड, लेकिन इतने थोड़े टाइम में इतना लिटरेचर है इसके ऊपर. आई वाज टेलिंग यू पीपल कि माय हस्बैंड हैज अ बिग रोल इन डेवलपिंग माय पर्सनालिटी. मेरा वो जो बबल पहली दफा जो पियर्स किया था ना, वो मेरे हस्बैंड ने किया था अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज आई यूज्ड टू वो एक बस एक परसेप्शन था मेरा अपने बारे में. ही ब्रोक दैट एंड आई वाज वेरी हर्ट एट फर्स्ट टाइम. मुझे लगा कि बस मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है यार, ये मेरे साथ क्या हुआ है. But then I started seeing life very differently.
मैंने मेरे अंदर एक जो चीजें मुझे सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस किसी ने यहाँ पे बोला भी था, आई हैव आल्सो डन अ कोर्स ऑन सेल्फ अवेयरनेस। बड़ी अच्छी चीज है और ये करना चाहिए। अगर कभी टाइम मुझे दोबारा आप लोगों ने सुनने की हिम्मत कर ली और मुझे मिस आसिया ने और बिलाल ने मौका दे दिया, तो आई विल स्पीक अबाउट दैट एज वेल, कि हम कैसे सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। ट्रिगर्स क्या होते हैं? कौन सी चीजें तंग करती हैं, किस चीज से गुस्सा आता है, कौन सी चीज आपको व्हाट पुट्स यू ऑफ, किस वजह से मूड खराब हो जाता है। सुबह सुबह जैसे मुझे अपने बच्चों के ट्रिगर्स का पता है कि मैंने इनको इस तरह उठाया तो इनका तो मूड गया, और इनका मूड गया तो मेरा मूड गया, मैं पूरे फर्स्ट 2 आवर्स के लिए आई गेट अपसेट। तो आपने अपना अगर डे अच्छा गुजारना है तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको मिनिमाइज करें। ट्राई कि ये चीज, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर आपका ये ट्रिगर है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, इट्स नॉट अ वीकनेस एट ऑल। वल्नरेबल होने का सबसे आसान तरीका और सबसे आसान मैं आपको तर्जमा अगर बता दूं तो सिंपल इज एक्सेप्टेंस। कम व्हाट मे, लेट गो। कुछ नहीं होगा, नथिंग, इट्स ओनली ईज योरसेल्फ। ठीक है, लेट गो, छोड़ दें, कुछ भी नहीं होने वाला। आप मत डरें कि क्या कौन क्या कहेगा, आपके साथ क्या हो जाएगा। मैंने अभी स्कूल सेटअप किया है, डे एंड नाइट काम करने के बाद 4 टीचर्स डिड नॉट टर्न अप ऑन द फर्स्ट डे। अब एक तरीका यह है कि मैं हर एक पे शाउट करूं, गुस्सा करूं, और एक तरीका ये है कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट करूं। सो आई चोज द क्राइसिस मैनेजमेंट बिकॉज इट वर्क्स। आप परेशान होते हैं किसी चीज को लेके, आपका फर्स्ट रिएक्शन, जो चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है, क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा आएगा, परेशान होंगे। लेकिन वहां पे डिसाइड ये किया करें कि क्या आपके परेशान होने से ये मसला हल हो रहा है। अगर हो रहा है तो हो जाएं परेशान, स्पेंड आवर्स। अगर नहीं हो रहा तो थिंक ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट, कुछ और सोचें जिससे आप अपने आप को ईज कर सकें। आप ईज अप होंगे तो फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द 5 की एलिमेंट्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को समझें। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस। और अब जो चैट जीपीटी है वो उसको भी ले लें। मैं वैसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ चैट जीपीटी, एंड आई जस्ट यूज इट फॉर राइटिंग। मैंने पीपीटी नहीं उससे बनाई, बिलीव मी। अच्छा, तो इट हेल्प्स यू, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। सेल्फ अवेयरनेस, ट्रिगर्स, वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स, स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करें। अगला स्टेप, ब्यूटीफुल स्टेप एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा, आप माँ हैं, आप बाप हैं, बच्चे को किस तरीके से आप डिसिप्लिन करते हैं? डरा लेते हैं ना, डरा भी लेते हैं, धमका भी लेते हैं, मोटिवेट भी कर लेते हैं, इंसेंटिव भी दे लेते हैं, बर्गर खिलाऊंगी, पिज्जा खिलाऊंगी, चलो होमवर्क करते हैं। जब आपका मूड होता है अच्छा तो आप उसको मोटिवेट करते हैं, जब आपका मूड होता है बुरा तो आप उसको डरा धमका के बेचारे को काम करवा लेते हैं। वो कर लेता है इसलिए कि यू आर मॉनिटरिंग हिम, आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं। आप सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, इज इट इजी? कर सकते हैं? कितने लोगों ने कभी कोशिश की है सेल्फ रेगुलेशन में जाने की? सभी साहब आप आ गए हैं? मैंने इतनी देर से मैं सुन रही थी सभी साहब इतना अच्छा ऐड ये काफी टफ है सेल्फ रेगुलेशन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम जुनैरा, इट्स रियली नाइस दैट यू आर हियर। सॉरी बीच में ये इंटरप्शंस अच्छी खासी आई हैं। I'm afraid this never happened before and ये इत्तेफाक ही हो गया बस। तो बस उसकी वजह से माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। इसको वल्नरेबिलिटी वगैरह को एक्सप्लेन आपने किया और उसको स्ट्रेंथ के तौर पे भी या वीकनेस के तौर पे भी काफी मैं सुन पाया भी था बीच में। और कुछ में मेरी तरफ से कुछ ऐसी चीज थी जो कि मैं चाह रहा था कि मे बी आप उसके ऊपर कोई रोशनी डालें कि इसमें जो वल्नरेबिलिटी के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें हम कहते हैं जी फिजिकल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब अगर हम इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वल्नरेबिलिटी का आप व्हाट डू यू थिंक के ये कोई डरने वाली चीज है, इज समथिंग वी हैव टू बी अफ्रेड ऑफ, और इज इट अ स्ट्रेंथ? क्योंकि ये हम जब इसको कलेक्टिवली व्हेन वी टॉक ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी
गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल दीज फैक्टर्स। सो इस हवाले से कुछ थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझे बता सकें। आप अपना क्वेश्चन ब्रीफ करके बताएंगे मुझे? देखिए, एक तो हम जनरली कहते हैं ना कि वल्नरेबिलिटी में हम क्या बेसिकली इट इज ट्यूनिंग एंड मैनेजिंग आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। एंड एज वी इंटरेक्ट तो उसमें हम देखते हैं, वी टॉक एंड फिर हम देख लेते हैं कि इसमें हम किन चीजों से हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो वो फिर हमारे में एक स्ट्रेंथ के तौर पे वो चीज आती है। अब उस हवाले से जो कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, एक आते हैं अपनी जिस्मानी तौर पे, फिजिकल आता है, आपके सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो प्रिवेल कर रही होती हैं, एनवायरमेंटल होती हैं, सारी कुछ हैं। अब वल्नरेबिलिटी को आप अगर इन सब को कलेक्टिवली आप जो है वो देखें ऑन द होल टोटलिटी के अंदर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, तो फिर हम इसको एक उसमें स्ट्रेंथ के तौर पे लेंगे, वीकनेस के तौर पे लेंगे, या हम चाहेंगे कि नहीं इन अलग अलग फैक्टर्स के जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सो उस हवाले से जरा मैं चाह रहा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आपके सवाल के अंदर इतना प्यारा जवाब है, और सारे जवाब जो है ना आपके क्वेश्चंस के, आपके सवाल के अंदर ही है, लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन किया है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, और अगर कोई लिटरेचर वाला होगा तो मेरे से वो करेगा, सेकंड करेगा मेरी थॉट को। मिल्टन जो है ना, जॉन मिल्टन, इसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो he says that it's the mind that can make heaven out of hell and hell out of heaven. Right, that's right. Right. तो अब देखिए, ये पर्सपेक्टिव की बात है। आपको अगर आप गूगल करेंगे, मैंने भी इसको गूगल किया था आज, प्रेजेंटेशन मुझे बिलाल ने कहा था कि आपने बना के देनी है। मैं वैसे प्रेजेंटेशंस के हक में नहीं होती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्टेड रहना पड़ता है, और जब आप फ्री टॉक करते हैं, लाइफ स्किल्स पर बात करते हैं और थोड़ी मोटिवेशनल बात करते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको दाएं से बाएं भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपने पूछे ना कि एनवायरनमेंटल होती है, फिर इसमें इमोशनल आता है, इसमें सोशल डोमेन आ जाती है, इसके अंदर हमारी फाइनेंशियल डोमेन भी आ जाती है। मैं जो आज बात कर रही हूँ ना, मैं इसको कर रही हूँ सोशल के ऊपर बात कर रही हूँ, सोशल वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है मैं इसको उसके साथ रिलेट करना चाह रही हूँ। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं उसी की तरफ जा रही थी कि सेल्फ अवेयरनेस, अपनी ज़ात को जानना, अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को, अपने इमोशंस को जानना। हम पूरे दिन में कितना टाइम लगाते हैं अपनी ज़ात से कनेक्ट करने में? लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, मैं काम करती हूँ, आई कनेक्ट विद पीपल, विद पेरेंट्स, मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ, सारा दिन बच्चों से, टीचर से, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारा दिन उनसे, और घर पे आने पे भी मोबाइल पे सारा दिन मैं उनको फैसिलिटेट करती रहती हूँ। मेरे बच्चे भी इग्नोर हो जाते हैं, मेरी मदर, माय हस्बैंड, माय फैमिली लाइफ मेरे प्रोफेशन के आगे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं। इन सब को भी मैं हटा दूँ तो इफ़ आई से कि मैं अपनी ज़ात से शायद 30 सेकेंड्स भी कनेक्ट नहीं कर पाती 24 आवर्स में। इज़न्ट इट एन इनजस्टिस? क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रेगुलेशन, आपका अपना मोटिवेशन लेवल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को छोड़ दें, हमें सिर्फ वो करती है अट्रैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ जी, इंट्रिंसिक पता नहीं वो कौन से लोग हैं, मुझे नहीं पता, आप है वैसे कोई है इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला? वाह 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 वाह, आसिया स्मूथ। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बस हमको अपना काम करना है, जो मर्जी हो। वेरी गुड। एम्पैथी, जी मैं भी हूँ। वेरी गुड भाई, मेरे पास तो बड़े अजीम लोग हैं सारे के सारे। गुड। बिलाल आप भी बता दें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? मैम आई थिंक इंट्रिंसिक हूँ a little bit, एक्सट्रिंसिक तो नहीं हूँ, एक्सट्रिंसिक तो नहीं हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो सर जो लोग अपने अंदर से कनेक्टेड होते हैं ना, जो कंपैशन जिनके अंदर होता है, कंपैशन मेरा ख्याल है एक लफ्ज है जिसको जानना चाहिए सब लोगों को, कि आप अपना काम बहुत प्रिसाइजली करते हैं, लेकिन आप दूसरों को अपना काम के साथ दूसरों को भी फील करते हैं, और जब दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं ना,
तो ये जो है ये कंपैशन होता है, और ऐसे लोग जो कंपैशन के साथ चलते हैं ना, ऐसे लोगों के पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। सभी साथ मैं इनको आपका जवाब अवार्ड से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जी, जी। मैं सिर्फ आपका जवाब दे दूं क्योंकि बात लंबी हो रही है। टू जी, जी, मी प्लीज। जी जी vulnerability used to be a weakness. मैं इसको बहुत बड़ी वीकनेस समझती थी। I would never open up. जितना मर्जी मेरे ऊपर टफ टाइम है, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे वो होता है ना एक आयरन लेडी वाला, कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं बदलते थे। लेकिन उसकी वजह से मैंने सफर किया। I started shattering from inside. आप आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू होते हैं, and then I started realizing one day कि मैं लेक्सोटिनल लेना शुरू हो गई हूँ, और फिर मेरी फ्रीक्वेंसी लेक्सोटिनल लेने की बढ़ गई है। मैं इंडिरोल पे जाना शुरू हो गई क्योंकि मुझे पैल्पिटेशंस आना शुरू हो गई, और ये किस वजह से हो रहा था? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करते करते कि नहीं, मैंने नहीं, आई वॉन्ट ब्रेक। बट देन फाइनली जब आप चले जाते हैं ना रिलैक्सेंट्स के ऊपर और आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ती है, दैट वाज द टाइम व्हेन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि टेक अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक। अब आप रुक जाएं, अब मजीद गाड़ी को 5वें गियर में डालने की कोशिश ना करें, इसे हॉल्ट पे ले आए। 3 years का ब्रेक लिया, एंड आई रीफ्यूल्ड माई सेल्फ, माई स्पिरिट। आई फेल्ट इक्वल टू इट कि अब मैं वापस जा सकती हूँ विद अ बेटर एंड विद मोर इक्विप्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ पावर एंड मोटिवेशन। और फिर मैं वापस अपने फील्ड के अंदर आई, बिकॉज आई फेल्ट आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम अ स्टिल बर्थ। आई हैड अ NNCAF बेबी। मैंने लास्ट जो अपना इतना काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आई सफर्ड, आई कुड नॉट टेक दोज न्यूट्रिएंट्स जो एक अर्ली प्रेगनेंसी में आपको चाहिए होते हैं, एंड आई सफर्ड अ स्टिल बर्थ। उसके बाद टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, कि अब मैं थोड़ा सा रुक के अपनी जात के बारे में सोचूं, लेट मी कनेक्ट टू माई सेल्फ। तो ये मेरी सबको एक हम्बल एडवाइस है कि अपने लिए 5 मिनट्स निकालें। आप जो भी फील कर रहे हैं ना, गुस्सा आया हुआ है, नाराज है, उदास है, कुछ भी गलत नहीं है बेटे, नहीं अभी थोड़ा सा वेट कर लें आप प्लीज, कुछ भी गलत नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि पे अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग। हाँ नहीं, यू आर वेरी राइट। मैं आपको बताता हूँ, इस हवाले से आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बात बताई है। I had been working with Unilever, I had been working with Coca-Cola International, मैं बाहर भी। मैं आज आपको बताता हूँ, Unilever का फर्स्ट डे मेरा था। मैं जनाब हमारे टाइमिंग से फ्रॉम 8 to 5 PM, मैं 5 बजे के बाद बैठा हुआ था ऑफिस में, और मेरी डे 1 पे मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई कि जी व्हाई आर यू सिटिंग आफ्टर 5। तो मैंने उनको कहा जी कि मेरा काम जो है वो अभी इतना पड़ा हुआ है। तो कहते हैं दैट मीन्स यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल योर जॉब। मैं सर पकड़ के बैठ गया पहला दिन कि मुझे आते ही इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो मैंने कहा सर मैं तो सुबह से आप देख लें, मेरा टाइम कैलकुलेट कर लें। अब मेरा बेटा कनाडा में है, वो मुझे बताता होता है, कहता है उनको एक रिस्ट पहना देते हैं और वो बंदा जो काम कर रहा होता है वो सारा मॉनिटर हो रहा होता है कंप्यूटर पे। तो हमारे वक्त में जब मैं व्हेन आई वाज इन यूनिलीवर 1980s में, तो मैं उस वक्त कोई रिस्ट वगैरह बैंड नहीं होता था, लेकिन ये है कि आप अपना असेसमेंट खुद करते थे। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मुझे पता चला कि नहीं जी, आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, आप काम कर सकते हैं, तो आपने वर्किंग आवर्स में ही खत्म करना है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि आपने घर जाना है, 1 घंटे के अंदर नहा धो के यू हैव टू गो टू द क्लब। क्लब के अंदर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां ऑफिस की कोई बात नहीं होगी। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर जब मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आया हूँ, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो तो जी इट वॉज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड कि जी रात 8-8, 9-9 बजे तक बैठ के काम करना है। 5 बजे का तो सवाल ही पता नहीं होता कि आप उठ के चले जाएं। वो तो कहेंगे नहीं जी ये तो कामचोर है, काम ही नहीं करना चाहता। सो दिस इज द डिफरेंस। और वही वजह होती है कि बंदों की सेहत खराब होती है, वो अपनी डे टू डे जो अपनी इंजॉयमेंट है, डे टू डे अपनी लाइफ है, वो डिस्टर्ब करते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, एंड दिस थिंग एंड्स अप यू नो इन न्यूमरस प्रॉब्लम्स। तो ये अगर सिस्टम को ही ठीक किया जाए और बंदे को अपना पता होता है। मैं आज आपको बताऊं, बॉडी लैंग्वेज इज देयर। हमारा जिस्म चीख चीख के कह रहा होता है कि नहीं आज आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, और हम लोग केयर नहीं करते, और उसके बाद फिर वी आर द वर्स्ट सफरर्स आवरसेल्व्स देन। एम आई ट्रू? एम आई राइट? है या नहीं है? वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। हम वो लोग हैं कि जब हम गिर जाते हैं, हॉस्पिटल ड्रैग किए जाते हैं, तब हम कोई मेडिसिन लेते हैं। वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। हम अपनी जात को सबसे ज्यादा मोस्ट
आप कह लें ना, जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एक वर्ड है, हम जी। अपनी जात को सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। मेंटेनिंग इमेज ना, अपना इमेज आप मेंटेन कर रहे होते हैं, प्रूविंग योर सेल्फ, टेलिंग अदर्स Exactly. कि हम बहुत अच्छे हैं। ये जो बिल्कुल। एक लेके चलना है, इसको बताना लोगों को बड़ा हमें जरूरी लगता है, टू शो ऑफ। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग पुट ऑफ हो जाते हैं अपने किसी के भी कमेंट से। चलिए हम अभी, क्योंकि प्रोफेशनल उसमें मैं बात कर रही हूँ, मुझे जी बताइए जी, प्लीज आप चलिए, आप बताइए प्लीज। अपने एम्प्लॉयर के। जी ये जो आप क्वेश्चन करिए कि आपने कहा कितने लोग पुट ऑफ हो जाते हैं किसी के बात करने से, हाँ है ना, ये बात आपने पूछा ना, अभी आपने क्वेश्चन पूछा। इस पर मैं एक छोटा सा अपना इनपुट देना चाहूंगी। मैंने कम्युनिटी के स्कूल्स में पढ़ाया है, मैंने देखा वहां के जो लोग हैं दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर इमेज, एंड जब उनको कोई बात रिफ्लेक्शन के लिए या उनको कोई ऐसे ही, मतलब आपको पता भी नहीं आपने कोई बात कही है, दूसरा आपको पता नहीं कि किस तरफ ले जाएगा, सो दे आर वेरी सेंसिटिव, तो वहां लोग बात ही नहीं करते, बहुत एहतियात से बात करते हैं। जो कम्युनिटीज में काम करते हैं ना लोग, वो बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि सर्कल मुश्किल नहीं लगता, आप फिर वहां कनेक्ट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल। देखिए आप बात कर रहे हैं ना ऐसे, एक आपने एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाया है, इसमें हम सब आपके साथ कनेक्ट हो गए। ये इस वक्त जितने लोग हैं ये आपको सुन रहे हैं, हमने अपने कैमरास ओपन कर लिए हैं, बिकॉज आपने हमें ये फील कराया है कि इट्स ओके, वी ऑल आर सेम। आपने वल्नरेबल होकर हमें ओपन अप कर लिया अपने साथ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वल्नरेबिलिटी की एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप एक लाइन खींच के बोलती जाती, और जैसे आपने पहले बोलना शुरू किया था, आपसे कोई भी बात ना करता, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, है ना ये बात, तो ये एनवायरनमेंट कम्युनिटीज में नहीं बनता, क्योंकि शायद इसको प्रमोट नहीं किया जाता, या इसीलिए कम्युनिटीज में शायद ग्रोथ जो है ना लोगों की, यहीं पे एक जगह पे रुक जाती है। वो होते हैं बादशाह, मगर एक बबल के, उस बबल में से बाहर निकल के वो देखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं आई एम द किंग, मैं तो भाई यहाँ का किंग हूँ, और बस इस जगह पे मेरी बादशाह चल रही है। बाहर जाके पता चलता है कि लोग कैसे हैं, और ये मैं कहती हूँ कि बहुत शुक्रिया स्किल शेयर का, कि यहाँ पर फिर लोग मिलते हैं तो मजा आता है। मुझे पता चला ये आपका इनिशिएटिव है। बिलाल टोल्ड मी दिस इज मिस आसिया's इनिशिएटिव, यू आर द रहने के बहाने ढूंढे, आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढे। वाह क्या बात है। चलिए जी, थोड़ा सा स्लाइड को भी लिफ्ट करवा देते हैं। वल्नरेबिलिटी रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, राइट। और अभी हम जाके आगे कुछ और भी बड़ी मजे की बात पढ़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अपने आप को प्लीज आज का सिर्फ टॉपिक समझे है ही आपके बारे में। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट हीलिंग योरसेल्फ। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करें आप बीमार हैं भी हैं या नहीं। कोई है ऐसा जो समझता है कि उसको हील करने की जरूरत है? प्लीज लेट्स बी वल्नरेबल। सोचें, रिफ्लेक्ट करें। अगर अभी तक नहीं पता तो इट मीन्स वी आर नॉट सेल्फ अवेयर, हमने रिफ्लेक्शन ही नहीं किया अपनी जात के बारे में। बताइए तलत। जी तलत। Ma'am, Anila says that I think everyone needs to heal. Everyone needs to heal. डे टू डे बेसिस पे, सुबह, दोपहर, शाम, आफ्टरनून, सोने से पहले, बीइंग मदर्स, बीइंग वाइव्स, हस्बैंड ही यकीन करें सुइयां चुभोने में कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते। अब इतने सालों के बाद आई हैव लर्न्ड कितना एब्जॉर्ब करना है, किस पे रिएक्शन देना है, किस पे लिफ्ट ही नहीं करवानी बिल्कुल, किस बात पे अगर गुस्से से कोई घूर रहा है, कोई का मतलब हस्बैंड है यहाँ पे, अगर वो गुस्से से घूर रहे हैं, गाड़ी में अक्सर ऐसा हो जाता है तो आई लुक स्ट्रेट अवे, मैं देखती नहीं हूँ, वो काफी देर बाद बेचारे खुद ही तंग आके घूरना बंद कर देते हैं। ओके, राइट। अच्छा, बिकॉज यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर इमोशन। पहले रिकॉग्नाइज तो करें कि आप इस वक्त गुस्से में हैं। अभी आप लोग सब लोग कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ मुझे ये पब्लिक चैट भी ना करें, अगर प्राइवेट चैट में बताना चाहें, सिर्फ बता दें कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। व्हाट आर योर फीलिंग्स, नॉट अबाउट माय सेशन, नॉट अबाउट मी, अबाउट योरसेल्फ। इस वक्त अपने आप को रीड करें, व्हाट आर योर फीलिंग्स राइट नाउ। आंखें बंद करके सोचें, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। मुझे मजा आ रहा है, आई एम एक्साइटेड, आई लाइक इट बिकॉज आई एम अ स्पीकर, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल, ओके।
being in this session. Tired of daily monotonous. अच्छा आप tired हैं अभी. Rumesa is tired. Hania is feeling useless, not being able to do anything. Okay. बताएं जी. Feeling happy. Wow. जी बताते जाइए. और भी कोई है जो रह गया? Miss Asi always feel wonderful, and because of her, yeah, always she's on the 9 cloud. मुझे नहीं पता है क्या कंपनी में ना कौन सी पिल खाती है ये? जी I don't know what pill she कंपनी में takes. सब अच्छा हो जाता है. She takes happy pill in the morning. बिल्कुल कुछ है मैम, हमें बताती नहीं मिस आसिया. वाह माशाल्लाह. कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं. तो पहली बात ये, मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी. सो इट्स जस्ट टू रिकग्नाइज. मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी और उसमें सिर्फ यही मैंने उसका जो टेक अवे लिया कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, फील योर हैंड्स आर होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील. आप रोड देख रहे हैं, फोकस आउट मत करें. कितने लोग फोकस आउट हो जाते हैं ड्राइव करते हुए. आप देख रहे हैं फिर आप फोकस आउट करना शुरू कर देते हैं. आप कहीं और पहुंचे होते हैं और आप ड्राइव भी कर रहे होते हैं. आपको पता होता है ऑफिस के बाद हमेशा होता है मेरे साथ. फोकस आउट कर जाते हैं. फोकस आउट होता है. अच्छा, खत्म करते हैं बात जल्दी जी. इसको फोकस आउट करने की बात मैं कर रही थी बिकॉज हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम सोचते नहीं है. वी डू नॉट गिव आवरसेल्व्स टू टाइम टू अनप्लग, अनवाइंड नहीं करते, बिल्कुल भी डिसएसोसिएट नहीं करते अपने आप को. वो 5 मिनट्स बैठ जाए कहीं पे, मेडिटेट कर ले. मेडिटेट करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है. कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? रेज हैंड कर दें या मुझे यहाँ पे लिख दें यस यस यस, या बोल के बता दें. करते हैं मेडिटेट? अच्छा, वेरी गुड जी. मुझे बताएगा ये, मुझे हानिया आप बताएंगी आप कितने मिनट्स की मेडिटेशन कर लेती हैं? मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन लेना चाह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझसे मेडिटेट नहीं होता बिल्कुल. आसिया, कितनी मेडिटेशन होती है? अगर आप करना चाहें कितनी देर कर लेती हैं आप? मैं सुबह का मेडिटेशन का फोकस होना जो है ना, वो अगर आप अपना सुबह का वॉक घंटे का रखते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो फोकस है ठीक होता है. सुबह जो लोग सुबह उठते हैं और वॉक करते हैं, उनका जो पावर टू कनेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है अपने आप के साथ. आप वॉक करें एंड यू थिंक, आपका दिमाग खाली होता है, मोबाइल नहीं होता, तो आप सोचते हैं और आप बहुत अच्छा फील करते हैं. इसी तरह से शाम की जो यानी 2 टाइम का वॉक करें, उसके बाद जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आप खामोशी से भी आपके अंदर जो चीज आप बोलते हैं, जो वर्ड्स आप बोलते हैं, उसके अंदर मेडिटेशन में आप वो कंटिन्यू रखेंगे. जैसे मैं जिक्र को कहती हूँ कि आप कंटिन्यू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. आप पहला कलमा ही पढ़ें दिल में. आप सोचें कि आप पढ़ रहे हैं, एंड व्हेनेवर यू फील डाउट एंड फियर, यू जस्ट से ला इलाहा इल्लल्लाह. ये इतना ही बोल दें दिल के अंदर कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के. तो आप मुझे लगता है कि अगर आप अनकॉन्शियसली ये वर्ड्स अपने अंदर डाल रहे हैं, तो आपको डर लगना ही बंद हो जाता है. आपको कोई चीज लगती ही नहीं बड़ी. तो मेडिटेट, आपका फोकस ठीक होता है. मैं आपको बताऊं कि मैं जब पहले चांदबाग थी, फिर अब मैं वल्नरेबल वाली बात आपको बताती हूँ. मैंने चांदबाग छोड़ा, मैं लाहौर आई, मैं लाहौर से सरगोदा गई, मैं सरगोदा से फिर लाहौर आई, फिर मैं लाहौर से सिंध गई, सिंध आई, और मैं सिंध में आई तो सिंध के लोगों को नहीं पता, लेकिन ये मैं और मेरे बच्चों को पता है कि हम इतना लंबा पेंडा काट के यहाँ पर आकर खड़े हुए. और ये वो जगह थी जहां पर मैंने देखा कि पीपल आर नॉट यूज्ड टू टेल अ सिंगल वर्ड टू अदर पर्सन कि उसको हेल्प हो जाए थोड़ी सी. तो मेरा जो पहला जो प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ, आप हैरान होंगे, मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुई थी, मेरा एबिलिटी टू फोकस खत्म हो गया. यानी मैं बोर्ड की तरफ टर्न होती थी, मैं भूल जाती थी मैं चिट्ठियां बनाती थी, मैं कागज पे लिखती थी, मैं याद करती थी, और मुझे लगता था मैं बस जाया हो गई हूँ, और मुझे लगता था मुझे ये निकाल देंगे जॉब से. और फिर क्या हुआ कि तकरीबन 1 साल के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकती. जब बिल्कुल ही मैंने अपने आप को समझा कि खत्म हो गई हूँ, तो मैंने कुरान पाक रात को रीड करना शुरू किया, उर्दू ट्रांसलेशन. एंड मैंने जब सूरह बकरा पढ़ी, इसी तरह मॉर्निंग वॉक के अंदर आया टू
अंडरस्टैंडिंग के साथ, पता नहीं क्या हुआ, वो फोकस ऐसा कोई अल्लाह ने सीधा किया कि केमिस्ट्री छोड़े, मैं बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, एनी प्रॉब्लम मैं गारंटी देती हूँ आपको, कुछ उठा कर दें, आई कैन रिजॉल्व इन अ मिनट, इन अ सेकेंड। मुझे अल्लाह ताला ने इतना फोकस दिया। तो मैं सबको कहती हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है याद करने का या कुछ हो गया है, बस जस्ट सूरह बकरा अंडरस्टैंड करके पढ़े, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े, समझ के पढ़े। इट्स नॉट, मतलब मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मुझे कोई इतना मेरा कनेक्शन होता, लेकिन मुझे लगा कि इन वर्ड्स में कुछ है, और फिर मुझे अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक इंटेलेक्ट बिल्ड हुआ, तो ना मैं भी भाग रही थी, एक रेस है, जीतना है, मैं अच्छी हूँ, मैंने और अच्छा बनना है, मैंने अच्छा दिखना है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे ये सीट विन करनी है, ये सब तो मेरे दिमाग में भी था। ये शायद हमारा ब्रॉटअप भी ऐसा होता है कि हम ये सारा कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये जो ऑल पावर्स हैं ये अल्लाह की गिफ्ट्स हैं, तो ये अल्लाह आपको देता है, आप उससे मांगे, उस पर बिलीव करें और ट्राई करें, और फिर देखें कि आपके साथ क्या होता है। यानी ये मैंने अपने स्टाफ रूम में किसी ने ये जिक्र किया कि ये प्रॉब्लम अगर हो जाए तो ये रिवर्स नहीं होता, आपका ब्रेन का प्रॉब्लम होता है कि आप भूल जाते हैं और फिर ये ठीक नहीं होता। एंड कैन यू इमेजिन कि ये ठीक भी हुआ, एंड आई एम स्टिल टीचिंग, और मैं बेतहाशा काम के साथ काम कर लेती हूँ और मैनेज कर लेती हूँ। और वेरी नाइस, जबरदस्त। इसमें मैं यहाँ पे छोटा सा एक जो इस अगेन अनदर टेक अवे, मल्टीटास्किंग छोड़ दें, ठीक है। मल्टीटास्किंग सिर्फ और सिर्फ आपकी नर्व्स को निचोड़ती है, आपको खत्म करती है और कुछ भी नहीं करती। पीपल टेक इट एज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स आजकल प्रोफेशनल्स में, लेकिन अब इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आप डीपर डाउन डिग करेंगे ना, यू विल फाइंड आउट मल्टीटास्किंग इट डजंट हेल्प यू। अगर आपने अपने लिए कुछ करना है तो इसको मेक इट अ हैबिट। और वैसे मेरे नजदीक टू मच एम्पथाइज करना भी आपको सम टाइम इट डैमेजेस यू। सो ये वाली करंट साइड है ना, इसमें दो चीजें हैं, सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ रेगुलेशन है, कि आप अपने इमोशंस को पहले समझें, उनको पहले पहचाने, आइडेंटिफाई करें, फिर उनको समझें, और समझने के बाद उनको देखें कि आपने क्या शेयर करना है और किससे शेयर करना है और कितना शेयर करना है। ये आपकी रेगुलेशन है। रिएक्शन देना, समटाइम्स बात बुरी लग गई है, यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू चूज कि आपने रिएक्शन देना भी है कि नहीं देना, और अगर देना है तो क्या रिएक्शन होना चाहिए। ये सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है, एंड इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जुनैरा, सेल्फ रेगुलेशन जो है ये आपका बनता ही तब है जब आप अपनी बॉडी को के अंदर जो चल रहा होता है उसको ठीक करते हैं, और वो रेगुलेशन आती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वॉक करते हैं, आप अपने लिए जबरदस्ती टाइम निकालते हैं। ये करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कौन सा इमोशन हिल गया, आपको खुद पता चलेगा, अदरवाइज तो ये इमोशंस बिलाल के और मेरे जो मसाइल है ना वो सेम है। मैं उनकी चैट पढ़ के हंस रही थी साइड पे, आसिया यू आर टू गुड टू बी ट्रू। नहीं, मैंने तो बहुत सही कहा। नहीं सुना ना, ये बात नहीं है। मैंने प्राइस पे किया है, मैंने आप मेरा सफर तो देखें, मेरा सफर तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, and I'm getting inspired कि I wish we could attain that level as well। ये जो बातें मैं कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि I am sharing this not because I'm good at it, because I'm very bad at it, but we badly need it. What emotions are associated with vulnerability? Vulnerability requires you to connect with your emotions, allowing yourself to feel. अगर आप sad है तो यार tell yourself I am sad. It's okay to be sad. I am angry. It's okay to be angry. I am frustrated. Yes, I am, because I have all the reasons to be frustrated. A number of powerful and some negative emotions. पर इधर आपने filter भी लगाना है, वो self regulation का हिस्सा है। Apply that filter. मेरा फिल्टर एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। इट नीड्स अ लॉट ऑफ मसल, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, और ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आपको मेंटली एंड इमोशनली प्रेजेंट रहना है, इनटू द प्रेजेंट मोमेंट।
अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, यू लिव इनटू द पास्ट, यू आर नॉस्टैल्जिक, यू लिव टू मच इन द फियर ऑफ द फ्यूचर, आप प्रेजेंट में नहीं है, तो फिर यू विल नेवर बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट। आप इन चीजों को ओवरकम कर ही नहीं सकते। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद ऑल दिस। मूव ऑन। Zunaira, you have rightly pointed it out. If I may say something, that this thing, of course, it has to be, you see, it has to be professionally, transplanted. Why? Because so that its stems and leaves grow up, just like a plant, and a person is then able to compete locally, internationally with others. और वो जो self awareness की बात हुई थी, ये होती है when it comes to vulnerability और emotional intelligence। और इस हवाले से जो quotients होते हैं वो बड़ा important part play करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा इल्म होगा इसका। intelligent quotient होता है, emotional quotients होते हैं, social हैं, adversity quotients वगैरह होते हैं। so all this जो है, ये हमारा subject होता था, तो उसके ऊपर जब ये सारी हमारी group discussions या आप कह लें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह होते थे, तो उसके ऊपर ये अच्छी खासी डिबेट हुआ करती थी। सो एक जो ह्यूमन बीइंग है वो सारा का सारा जब इन एस्पेक्ट्स के ऊपर वो रिलाई करता है और उसके हिसाब से करता है, जैसे अब आपने अपनी मिसाल खुद भी दी है, बड़ी अच्छी दी है, कि बंदे को खुद फील हो रहा होता है अकॉर्डिंगली, तो वो जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बंदा जो है वो डिटरमिन करता है फ्यूचर की। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने इसमें पढ़ी हुई है, 5 सेकंड विंडो। जी, अलाउ योर सेल्फ दैट 5 सेकंड विंडो। अगर आपने किसी काम के लिए सोच लिया है या किसी फीलिंग से लड़ना है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आई एम सैड, नाउ चूज you want to be sad for the next 1 hour, 2 hour, 3 hours, या फिर वो 5 सेकंड विंडोज यूज करें, 1 2 3 4 5, कम आउट ऑफ इट। और उसे कम आउट ऑफ इट करना वो अगेन मैटर ऑफ योर चॉइस, आपने चूज करना है। टेंशन में दिन गुजारना है, सुकून से दिन गुजारना है, अगेन इट्स योर चॉइस। ये इमेज देखें, समटाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। देख लें हाथ की कंडीशन, इट सेज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज है। ओके जी, वल्नरेबिलिटी एंड EQ आर सिम्बियोटिक। कैसे सिम्बियोटिक है? बड़ा प्यारा, मैंने इतनी अच्छी एनालॉजी पढ़ी और वो इतनी स्ट्रांगली रिलेटेबल है। एक तो आपका ये जो ट्यूटर बी उसके साथ, और एक ये वल्नरेबिलिटी और EQ के साथ, दैट बीज नीड फ्लावर्स एंड फ्लावर्स नीड बीज। कैसे? क्योंकि बीज को जरूरत होती है नेक्टर की, एंड नेक्टर फ्लावर्स को किस चीज की जरूरत होती है? पोलिनेशन की। बीज की जरूरत क्यों है फ्लावर्स को? बिकॉज दे नीड बीज फॉर द पोलिनेशन। और बीज को जरूरत क्यों है फ्लावर्स की? नेक्टर के लिए। सो वल्नरेबिलिटी और EQ का जो रिलेशन है, इट इज लाइक दिस। वल्नरेबिलिटी नीड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, emotional quotient, and emotional quotient needs vulnerability. They can help you improve your emotional intelligence skills. Emotional intelligence can help you be vulnerable. ठीक है? Vulnerability is not emotional dumping. प्लीज एक चीज समझ लें, जब मैं कहती हूँ ना लेट गो, इसका मतलब नहीं आपने बंदा चूज करना है कि आज ये मेरे सामने बैठ गया, आसिया है, बिलाल है, आप सब लोग हैं, आज मैं इमोशनल डंपिंग करना शुरू कर दूं। जो कुछ मेरे अंदर है मैं उठाऊं और बाहर निकाल के फेंकूं। मैंने एक हरकत की हुई है, मैं यहाँ पे अब ये फोरम आई डोंट नो कि मैं कितनी एट लिबर्टी हूँ टू टेल यू। आई यूज्ड टू बी इन माय टीनेजर्स और आई एम नॉट अ गुड लिसनर, स्टिल आई एम नॉट अ गुड लिसनर। और मेरे ख्याल से वल्नरेबिलिटी का एक ये भी है कि आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें और लोगों को बताना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर बुरी बातें हैं तो अच्छी बातें भी हैं। वो जैसे आपने कहा यू लुक फाइन, आप अच्छा बोल रही हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, तो 100 खामियां भी अगर हैं आप चल जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो वल्नरेबल बंदा है ना मार्केट के अंदर, वो उतना ज्यादा चलता है। जो जितनी बोंगियां मारता है वो उतना ज्यादा चल जाता है। जो जितना स्मार्ट है उसके सक्सेस चांसेस उतने ज्यादा कम है, क्योंकि वो अपने आप को हर वक्त मेजर करके रखता है, अपने आप को सोचता है कि आई एम परफेक्ट। 100% एग्रीड, 100%। बहुत अच्छी बात की मैंने, वेरी बहुत अच्छी बात की। जो जितना स्मार्ट है वो नहीं चलता। Be a little stupid. This is what I have learned. ये मैं अब इस प्रोसेस में हूँ कि मैं ये सीख रही हूँ कि थोड़ी सी स्टुपिडिटी होनी चाहिए।
अगर नहीं है तो फिर आप एक हद तक सक्सेसफुल हैं और फिर सैचुरेशन पे बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, मैम वो अल्लाह हाफिज कह देते हैं जल्दी। स्टीव जॉब्स कहता था कि स्टे फुलिश स्टे हंग्री। हाँ, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी तो नाइस। ये बड़ी अच्छा सूट कर रहा है ये कोट। तो जब लेट गो करना है ना, तो इमोशनल डंपिंग नहीं कर देनी, वहां पे सब कुछ निकाल के नहीं बताना। यू हैव टू चूज कितना बताना है और क्या बताना है और किसको बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ही सेज नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, टेल इट। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ हम की टेक अवेज, अब ये सारी बात के टेक अवेज मैंने एक कोशिश किया कि मैं यहाँ पे डाल दूं। टेल इट लाइक इट इज। एक एक प्लीज वॉलंटियर करता जाए, क्या समझ आ रहा है आपको? प्लीज, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। दो आई लव टू स्पीक। टेल इट लाइक इट इज, क्या मतलब है इसका? मैम बी योरसेल्फ। ठीक है, बी योरसेल्फ भी ठीक है। और थक गए हम, बोर हो गए हैं। नहीं, जैसा लग रहा है आप वैसा बता दें, जैसा आपको फील हो रहा है आपने वैसे बोल दिया। जो फील हो रहा है ना वो बताएं। हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा परप्लेक्स्ड है, उसकी वजह ये है कि हम अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। हम खुद कंफ्यूज्ड हैं, हमने वो मसल ही डेवलप नहीं किया जिसमें हम रिफ्लेक्शन करें और हम बैठ के सोचें कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम, मेरी फीलिंग्स क्या है और जी, फिर उनको तन्वीर भाई। कम्युनिकेट कैसा करना है। सो टेल हाँ। इट लाइक इट इज। अगर आप फील कुछ कर रहे हैं और बता बस कुछ थोड़ा रहे सा हैं, टाइम है बस ठीक है? 10 मिनट। Abandon your ego. आपका माइक ऑन है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप किसी भी फोरम पे जो भी काम आसानी से करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके लिए यस बोल दें, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए नो बोल दें। Very nice. And how many of you find saying no very difficult? कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? मुझे बहुत कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। Very good. ये किसने कहा कोई मुश्किल नहीं है? नम्रा उस्मान। नम्रा उस्मान। नम्रा, वेल डन, जबरदस्त यार, ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। मुझे 17 साल लगे हैं नो करने को सीखने आप में। इधर आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। मैम नो मेरे लिए भी सबसे वहाँ ज्यादा रहते हैं, मुश्किल वहाँ है आ जाए। नो करना। हाँ, नो सबसे करना ज्यादा बहुत मुश्किल। एक बहुत वर्कशॉप tough है होती है। मैम, नो बहुत tough करना है। शुरू कर देते हैं बंदा। जी बिलाल When you को भी start और saying no- जुनैरा को भी ओपन ऑफर है, यहाँ ज्वाइन दिस प्लेस, हमारे पास आ जाए। Send है ना? सेटिंग Send है ना? है, ये बड़ी मैं आपको कराची से- अच्छी बात बता रही हूँ। नो करनी आ जाएगी आपको यहाँ आकर। They find it very easy. I know वैसे some ये ना बहुत ईमानदारी की बात है कि 40 साल के बाद सीखा था नो करना। और मजा आया नो करके? पहला नो करके मजा आया कि नहीं आया? 100% डंके की चोट पे नो किया था। आप यकीन करें, बहुत learn रिलीफ that मिलता होगा मैम। ये नो करना सीखें और उस पहले नो को सेलिब्रेट करें, उसको याद रखें, चेरिश करें दैट फीलिंग। इट इज एन एक्सट्रीमली मजेदार किस्म की फीलिंग है ये। आगे जी, बिल्कुल। योर ईगो एंड एडमिट योर शॉर्टकमिंग। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरा नहीं ख्याल इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अबंडन योर ईगो, जाने दें, एंड एडमिट योर शॉर्टकमिंग्स। मैंने मेरे ख्याल से आज जितनी अपनी गिनवा दी है ना आप लोगों को शॉर्टकमिंग्स, आपने गिनवाई है तो सबने अपनी शॉर्टकमिंग्स आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन ये होता है vulnerability का फायदा। गिनवाने का मकसद ये था, वल्नरेबल होने का मकसद ये था कि आज आप लोग बैठ के अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखें। शॉर्टकमिंग्स ठीक करने की बात नहीं मैं कर रही। अगर आपके अंदर 5 खामियां हैं और 20 खूबियां हैं, तो उन 20 खूबियों पे कैपिटलाइज करें और उनको फर्दर एनहांस करें। आई वॉन्ट से कि इन 5 को भी बेचारियों को निकाल दें, इनको लेट इट बी वेयर दे आर, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। जो बी योरसेल्फ वाला फॉर्मूला है उस पे आप थोड़ा सा अप्लाई करें। गिव योरसेल्फ अ ब्रीदर, स्पेस दें अपने आप को, ठीक है? डोंट लिव इन गिल्ट। एक छोटा सा ये स्लाइड पूरा हो जाए तो हम एक रिव्यू करना है हमने। जी, 1 मिनट का फिलहाल करेंगे, ठीक है? आप जी, जी। स्लाइड पूरी कर लें। डोंट लिव इन गिल्ट, बी अकाउंटेबल। ये गिल्ट सारी जिंदगी मार देता है। अब आपका ये जो पछतावा है, जो गिल्ट है, जो शेमिंग है, हम शेम और गिल्ट से किसी ने हमें क्या इवैल्यूएट करना है? हमारा जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम कभी भी अपनी जात को पास नहीं करते। Has anybody suffered from guilt, or is anybody suffering from guilt right now? मैम ये आई थिंक बड़ा नॉर्मल है मेरे ख्याल से। It's very normal.
It's very normal. Yeah, of course, guilt, Normal of regrets. hate. It's very normal, but मतलब how जो to deal guilt with it, छोड़ देना it चाहिए। depends on you. बट ये जितना डैमेज करता है ना आपको, आप What damage करता है? सबसे ज्यादा अपने आप को लुक डाउन अपॉन करना शुरू करते हैं। बिल्कुल मैम, it's like a burden, मतलब कि जी बढ़ता जाता है, burden जी, feel होता है आप बहुत। अपनी जात अपने सामने जब अपनी वो खो देते हैं ना, सेल्फ क्या कहना चाहिए, एक वैल्यू, वो बिल्कुल फिर नेवर थिंक कि कोई आपकी वैल्यू को समझेगा। फिर किसी और से एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपको लुक अप अपॉन करेगा इफ यू आर लुकिंग डाउन अपॉन योरसेल्फ। एंड शेम एंड गिल्ट इज समथिंग यू हैव टू रिकवर योरसेल्फ फ्रॉम। मैं नहीं कर सकी अभी तक, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। शेयर फेलियर स्टोरीज विद द सेम प्राइड यू शेयर सक्सेसेस। फेलियर स्टोरी, ये मुझे बड़ा मजा आता है, आई एम गुड एट दैट, ये मैं कर लेती हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो वो राइटर्स को पढ़ के ना बड़ा मजा आता है। इज देयर एनीबॉडी हु फील्स कंफर्टेबल इन शेयरिंग फेलियर स्टोरीज? some of them. अच्छा, एक ही वाले लोग कर सकते हैं। सभी साहब कहाँ चले गए हैं, वो जरूर बोले यहाँ पे बिकॉज ही वाज द वन टू शेयर वेबकैम। तो मुझे जी सभी साहब। जी जी बिल्कुल नहीं, आप बड़े अच्छे इंस्टेंसेस कोट कर रही हैं, बल्कि अपनी पर्सनल जो भी हैं चीजें वो शेयर की जा रही हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें चंद सवाल थे मेरे ज़हन में कि जब आपने कहा जी कि नो कहना जो होता है वो उसके हवाले से बात हो रही थी, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एक बंदा आता है और आकर गुस्से में आकर कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, एंड आई से नो, है या नहीं? So, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूं कि आपने उसको नो ही कहना है ना, आपने यस तो नहीं कहना। अगर आप झूठ नहीं बोला या कुछ भी है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो, कि आपने कहां पर यस करना है, कहां नो करना है। अब आप किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप बहुत वेल ड्रेस होके आती हैं, आपका बॉस जो है वो सिंपल शर्ट और टाई लगा के आ रहा है और हम सूट पहन के जा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद हमारा बॉस क्या फील करना शुरू करेगा कि यार मैं तो बॉस नहीं, लगता है ये मेरा बॉस है या नहीं है? आपको ये प्रैक्टिकल, बिल्कुल। मैं आई हैव ओवर 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, और मैंने जिंदगी में, और मैं बाहर भी रहा हूँ, सीरिया, सऊदी अरेबिया और दुनिया। मैं आज आपको बताता हूँ, जो आपकी बात है बिल्कुल मुझे जो है मैम जुनैरा दिल को लगी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो अपने आप को बंदे को मोल्ड करना है ना, वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हवाले से करना होता है। ये मैं आज आपको बता दूं, मैं 1970 में मेरे फादर की ट्रांसफर हुई थी ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान, नौ बांग्लादेश, और मेरे वहां से आई वॉज देन देयर इन अ कैडेट कॉलेज। आई वॉज द ओनली वेस्ट पाकिस्तानी ओवर देयर, बाकी सारे बंगाली थे या बिहारी थे हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अब आप सोच लें कि मैं एक एम्बेसडर था, एक सफीर था हु वाज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, और मेरे पे ऐसे प्रेशर था, और मैं एम टॉकिंग अबाउट 1970, मैंने मैट्रिक 70 में किया और मैं वहां से बच के आया हूं ईस्ट पाकिस्तान से। तो 68 to 70 मेरा सेशन था। जो बताना मैं आपको चाह रहा हूं कि अगर मैंने वहां पर बंगालियों के साथ ना बना के रखी होती, मैं उनको कहता, जिससे हम कहते हैं हाउ आर यू, क्या होना अच्छे, भालो अच्छे, मैं अगर ना ये सीखता चीजें, उनके साथ मिक्सअप ना होता है, और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कई दफा मुझे बुरा भला कहा, गालियां दी, सब कुछ है, कई जगह पे मैंने उनको टोका भी कई जगह, लेकिन आई सर्वाइव्ड माई सेल्फ। मैंने जिंदगी में उसके बाद सीख लिया था कि जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक बंदे को मोल्ड करना पड़ता है। अभी आपकी अडैप्टेबिलिटी है। ये हमने तो बात कही ना कि हमने वी शुड लर्न टू से नो, ये वो वाला नो नहीं, ये अडैप्टेबिलिटी मेरे नजदीक, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अडैप्टेबिलिटी एंड दिस इज योर हाई सेल्फ एस्टीम। अगर आपने ऐसे लोगों के साथ भी गुजारा किया, इट मीन्स दैट यू एक्चुअली हैव अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, जिसकी वजह से आप तंग नहीं हुए। मोहित सर तक की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब आपकी टांगे भी नजर आना शुरू हो गई है। चले ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा आपने, चले एटलीस्ट बड़ा अच्छा पॉइंट आउट कर दिया। लेकिन मेरा मकसद कहने का यही था, आपने जो बात की है कि बंदा खुद इस चीज को असेस करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को हमेशा, और उसके हवाले से ही एक बंदा, और एंड आई एम वेरी मच श्योर हर बंदे को अपनी पता होती है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस सबको पता होती है, इसमें कोई शक नहीं है।
जी सभी जी साहब, मैं कुछ ऐड करूं, एक छोटी सी जी बात जी देखें। प्लीज प्लीज जो जुनैरा बात कर रही है ना, जी वो जी ये है कि आपकी अपनी एक कैपेसिटी है काम करने की, जी और वो कैपेसिटी एक्सीड किए जा रही है और आप काम कर रहे हैं, तो उस कैपेसिटी को देखते हुए आपको कहीं पर नो करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपकी कैपेसिटी से रिलेट कर रही है वो। जो बात आप कर रहे हैं सभी साहब, वो एक बात है कि आपको एक जगह पे काम करना है और वहां लोग हैं, और समटाइम्स आपके पॉइंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी मिल रहा, तो भी आपको उनको क्योंकि साथ लेके चलना है और आप टीम हेड है, तो आपको उनको उनके ओपिनियंस को लेना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, टू क्रिएट योर स्पेस, टू क्रिएट देयर स्पेस एज वेल। जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट दो अलग पॉइंट है जो मुझे समझ आ रही है। एम आई राइट? आई थिंक सो। इट्स अमलगमेशन। मेरी नजर में ये एक ऐसी रेनबो की तरह जिसके कलर्स आपस में मिक्सअप होते हैं, जो जहां तक थोड़ी बहुत मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसमें ये अमलगमेट हो जाती है। और इसका जो मैम जुनैरा ने बताई ये बात, वो बिल्कुल अपनी जगह है। मे बी कि ये आप इसको दूसरे उस जाविये से इसको देख रहे हो, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और सिचुएशन के बाद अलाउ करता है। सर सभी कुछ भी गलत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील। दैट्स राइट, गलत एंड सही पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक है। जब हम बैठते हैं ना, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग हमारी इसी तरह से डेवलप होती है। व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग एंड व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग आइडियाज फ्रॉम अदर्स, तो वी ग्रो। मैं आप अपने एक्सपीरियंसेस बार बार आपको इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत स्टबन थी अपने इसको लेके। जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा एक हार्ड माइंड सेट के साथ कि बस मैंने जो सोच लिया ये दिस इज हाउ इट इज। इवन एक जगह पे स्पेलिंग भी गलत थे, एक वर्ड के हमेशा गलत लिखती थी, स्ट्रेंथ के स्पेलिंग। और जिस दिन मैंने पढ़े मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा नहीं ये गलत है, ये लिखे ही गलत है यहाँ पे। ये हाल था, ठीक है। You grow that mindset because there was nobody to guide me, and then luckily I married a very very learned man who is emotionally very capable and very flexible, very advanced. मैं कोशिश करूंगी मैं उनको इस फोरम पे लेकर आऊं जरूर। You will enjoy listening to him as well. Share failure stories की बात होगी। Aim to be honest, not nice. Honest, not nice. Nice मत बने, ठीक है। Honest होइए और nice बड़ी गलत यूज करते हैं लोग। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में अपने कड़वे कसैले जुमले और दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले, दूसरों के सिर उड़ा देने वाले जुमले भी कर देते हैं। एरोगेंस, देयर मस्ट बी जेलसी, ये गलत बातें हैं। बदतमीजी एक और चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और बात है, ऑनेस्ट होना और बात है। और ऑनेस्टी पे हमने अपना नाइसर होने का वो जहन से निकालना है, बिकॉज अगेन व्हेन यू वांट टू बी नाइस, एक्चुअली अगेन यू आर ट्राइंग कि आपका परसेप्शन आप क्या है, ये लोग आपको नाइसर समझें। आपको तो पता है कि आप क्या हैं, वांट पीपल टू बी, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली हमने ये बात है कि आपने वल्नरेबल हो जाए, कोई मुजायका नहीं है। नहीं होते तो आप तने रहते हैं ना, एक स्ट्रेट उसमें रहेंगे तो उसको ब्रेक करना बहुत इजी हो जाता है और टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, एक्सेप्टेंस आती है आपके अंदर लाइफ की, डिजास्टर्स की, क्राइसिस की, तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी वो होके वो गुजर जाती है, क्योंकि एवरीथिंग दैट कम्स हैज टू गो। उसने वहां पे स्टे नहीं करना बिल्कुल भी। लेकिन आपके अब डिपेंड करता है कि आप उसको यू लेट इट शटर यू, और यू लेट इट जस्ट आपके लिए एक लाइफ एक्सपीरियंस बना वो, और उसको आपने निकाल दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। इसमें बहुत ज्यादा वल्नरेबल किया आपने आज, सारों को कर दिया। आप पहले से आसिया मैंने देखा है ना, ये इनको मैं जानती हूँ सिंस 2016 और 17, एंड समहाउ जब हम मिले उसके बाद वी डिस्कवर्ड कि हमारा तो कोई दूर पार का रिलेशन भी है, हम तो दूर पार की कजन्स भी हैं। नहीं, दूर नहीं, खासा करीब का रिलेशन भी है। मैंने कहा ये ना हो आप कहीं कहने में हो गया, ये तो बहुत फेवरेटिज्म हो गया। मैं अपने सारे रिश्तेदार यहाँ लेकर आ रही हूँ स्किल शेयर पर। वेरी गुड, वेरी गुड जी। नहीं, वी आर ऑल आवर फैमिली। हम ये सारे लोग जो स्किल शेयर पे हैं, हम फैमिली हैं। अभी हम आपस में
मेरा ख्याल है मेरी बिलाल से मुलाकात नहीं हुई, वी आर वर्किंग एज अ टीम, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है उनके साथ एक ताल्लुक है, ये कम्युनिटी बिल्ड हुई है in 4 years. No doubt. I and I would love to attract more people towards it, क्योंकि एक convenience of home और उसके साथ जो एक exposure है, it definitely adds to your self confidence. और हम जो टीचर्स होते हैं ना, हमें आदत होती है हम किसी भी फोरम पे जाके बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। आई वुड वांट के हमारे, जैसे मैंने कल स्कूल स्टार्ट हुआ तो पहली असेंबली में मैंने कहा वो बच्चा तिलावत के लिए आएगा जिसने कभी जिंदगी में तिलावत नहीं की, जिसने कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, मुझे आज वो वाला बच्चा चाहिए। एंड आई मेड वन come up in the morning assembly and he did the recitation. तो एक life opportunity होती है, and for some it's just a matter of giving an opportunity and it's just the start of the journey for them. जी, अब हम इसको क्या करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट करें, और आप हमें कोई की टेक अवे दें आज के प्रोग्राम के, और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। की टेक अवे जी, जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाउ यू काउंट ऑन योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ्स। अपने ट्रिगर्स को जरूर आइडेंटिफाई कर लें, जो चीज आपको तंग करती है, परेशान करती है, और उनको मिनिमाइज करें। शॉर्टकमिंग्स से लड़ना छोड़ दें फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। जो चीज कंट्रोल में नहीं है, मेरे ख्याल से आई एम 40+ नाउ, मुझे ये लगता है कि अब वो जो पेट हैबिट्स है और उनको करने के बजाय जो मेरी ऑलरेडी अच्छी आदत हैं और जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं उन पे कैपिटलाइज करूं, बजाय इसके कि उन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीजों को लेके जो है मैं परेशान होती रहूं। बट आई ट्राई एवरी डे, आई ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं रिफ्लेक्शन जरूर करती हूँ। एक अच्छी आदत, मेडिटेशन नहीं होती, 5 मिनट नहीं होती, लेकिन माय हस्बैंड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रेटजी विद माय यंगर वंस। वो 5 मिनट का टाइमर लगा के इनको लेटा देते हैं और इनसे कहते हैं हिलना नहीं, तुम लोगों ने आंखें बंद करो, हिलना मत, बिल्कुल भी बात नहीं करनी, हंसना नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप फॉर द बेबीज टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग। और ये बड़ा अच्छा, माय लिटिल वन ही यूज्ड टू बी वेरी हाइपर एक्टिव, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बहुत ज्यादा काम और पॉइज और वो डेवलप होना शुरू हो गया। आपने देखा है कितनी देर से मेरे साथ इधर उधर लटक रहा है बंदर की तरह, लेकिन परेशान नहीं कर रहा मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Do they understand? बिल्कुल राइट। तो बस टेक अवे की बात करी थी, उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जरूर जाएं आप, क्योंकि बीमारी की तशखीस कर लेना ये काफी नहीं होता। डायग्नोसिस में हमारी वैसे पाकिस्तानियों की आदत है, वी गो टू द डॉक्टर फॉर द डायग्नोसिस ओनली, वी डू नॉट गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस। हम डॉक्टर के पास जाके 70% ठीक हो जाते हैं और पहली डोज लेने से पहले ही हमें अफाका आ जाता है। तो उसको सेल्फ रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको अनट्रीटेड मत छोड़ें, गो टुवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट। ओके, और फिर ट्रीटमेंट के लिए चूज भी कर लें कि ये ट्रीटेबल है भी है, करना भी है या नहीं करना, ये जरूर फिल्टर लगाना है आपने। ओके, रिएक्शंस, कोई किसी किस्म का रिस्पांस दे दे, बदतमीजी कर दे, ऊंचा बोल दे, जिससे आप डिस्टर्ब हो गए हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा लें कि कितना डिस्टर्ब होना है और कितने मिनट्स या सेकंड्स की विंडो के लिए होना है, बिकॉज somebody's harsh comment is not worth spoiling your precious day. बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफी मैंने अच्छी बातें कर ली हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। ताहिर साहब ने रेस किया हैंड, इनका भी ले लें जल्दी से, पहले भी किया था जी। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो खुदा हाफिज का टाइम हो गया ताहिर। बस मैं भी ये उसका लास्ट होता है ना रिव्यू, जब वाइंड अप करते हैं जी, मैंने कहा उसमें हिस्सा शामिल कर ले जी प्लीज। क्योंकि ट्रेनिंग करवाते रहते हैं ना, तो फिर जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो हम पहले ऑडियंस से पहले ये पूछते हैं कि आपके फेयर्स क्या थे, इसके बारे में, यहाँ आना, ट्रेनिंग कैसे होगी, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो फिर वो अपने फेयर्स बताते हैं कि हमें ये था वो था, फिर हम उनको यानी उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, उनको एक हेजिटेशन सी होती है, वो यानी वो खत्म करनी होती है, मकसद तो यही होता है।
कि हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना चाहिए और अपने मौके मुनासिबत के मुताबिक अपने आप को सेट रखना चाहिए उसके मुताबिक। बहुत अच्छी बात है ताहिर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस जैसे आसिया ने फुल ऑफ स्टार्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि हम ट्रेनर्स एज अ ट्रेनर हम लोगों को बुलाते हैं, हम आइस ब्रेकिंग करवाते हैं, उनको कंफर्टेबल करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनके साथ, लेकिन जिंदगी इसका नाम नहीं है। लाइफ इज नॉट। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं सेक्शन चेंज कर दें, यहाँ पे प्रॉब्लम है। आई टेल देम मैं कर दूंगी, व्हाट्स नेक्स्ट, लाइफ में क्या करेंगे, लाइफ में कौन सा सेक्शन जाके इसका चेंज करवाएंगे। लेट हिम फेस, लेट हिम फाइट हिज फियर्स। कोई बुली कर रहा है तो बुली तब किया जाता है जब आप बुली होते हैं। अगर आप यू चूज नॉट टू बी बुलेड तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुली नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तो ये हमने बस, जिसको भी आप ट्रेन करें उसको जरूर इस फोरम के ऊपर लेकर आए, इस पॉइंट पे लेकर आए कि अपनी जात को पहचाने और उसके लिए लड़ना सीखें और उसको डेवलप करना सीखें, ग्रो करें, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करें। Thank you so much, ma'am. आज बहुत अच्छा आपने सेशन किया। Thank you so much. Brilliant. Thank you, thank you. It had been Thank an you very entirely much. pleasure. Thank you so much. Okay, ji, Allah take Hafiz. care. Allah Thank you so Hafiz. much. Bye bye, Okay, everybody. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Thank Hafiz. you. Allah Hafiz. I hope I'll get to see each one of you once again. Inshallah, ma'am. Inshallah. Inshallah. Take care. You Thank have made your tutor profile now. You can join and you can come in every session Okay, on right. Thursday, and Good, you can have your own session if you want to again. जी जरूर जरूर। उसमें जो मेरी प्रोफाइल है दैट्स एज अ लैंग्वेज फैसिलिटेटर। आज मैंने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया कि ओके ऑडियंस मेरा मिक्स वाला है, हाइब्रिड है, तो आई विल गो फॉर कोड स्विचिंग, हम इसको लगाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी इंग्लिश की किसी स्किल के बारे में बात करनी है तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। आई विल हेल्प एंड फैसिलिटेट टू माय मैक्सिमम इंशाल्लाह। Thank you so much. Okay? Thank you. Okay, जी। Thank Take you care. everyone for joining. I hope Thank I you very can much, leave ji. it now. No Thank questions. you. Is there any question? You've been extremely nice and patient audience. Ji, thank you so much. I think nahi Bilal, nobody wants to say something to better make lives easier for everybody. Okay. You can say goodbye. Say goodbye. Okay. Thank you Right. everyone. Allah Hafiz. Okay.